Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in today's session, and today we're going to talk about chapter 3, and we're going to cover the topic of the organization development practitioner, and we'll be coming across the details of the OD practitioner, that what competencies and proficiencies are required, what skills are required, what are ethical concerns related with the organization development practitioner, and how organization development practitioner can be more effective and efficient in an organizational facility. So for that matter, the learning objectives of the chapter are to understand the essential character of OD practitioners. Secondly, we'll be talking about to understand the necessary competencies required by an effective OD practitioner. And third would be to understand the roles and ethical conflicts that is actually faced by the OD practitioner. So these are the main concerns of the chapter we'll be focusing upon. Now, starting the chapter detail, the first topic is that there are two types of consultants which are in association with an organizational facility. One are internal and others are external. Like I was discussing with you, that when we talk about internal consultants, so they might be with the designation of HRBP, which is Human Resource Business Partner, Organization Development Consultant. And sometimes it can be some external consultant support available to the organization. And in case of external support, obviously, there are certain consultancy firms, certain consultant agencies which are providing the services and solutions to the industry. Okay, so even in Pakistan, even in Gujranwala, Gujarat, Sialkot, Faisalabad, Islamabad, Karachi, there are so many firms which are established already, जहां पर आपको consultancies की जो support and facility है, वो मुहैया की जा रही है. So professionals from other disciplines actually who apply as OD practitioner, they can be total quality management managers, they can be IT and IS managers, and they can be even compensation and benefits managers. ओके, बिकॉज इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि अक्सर औकात ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिफरेंट फंक्शनल एरियाज को वो आउटसोर्स करते हैं, और जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने डिफरेंट फंक्शनल एरियाज को आउटसोर्स करेंगी तो वहां पर फिर उनको इन कंसल्टेंट्स की जरूरत वो पड़ती है कि दे शुड बी देयर टू टेल देम कि किस तरीके से वो अपने आप को डेवलप करें. ओके, तो अब ओडी प्रैक्टिशनर जितना ज्यादा ब्रॉडर कैनवस पे ऑपरेट करेगा, जितना ज्यादा वो मल्टीपल स्किल्स के साथ होगा, उतना उसके लिए बेहतर है. बिकॉज जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सन और वन यूनिट, समटाइम्स इट इज डेवलपमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन. जब होल ऑर्गेनाइजेशन की आपको डेवलपमेंट करनी है हॉलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पर फिर आपको मल्टीपल स्किल्स की जरूरत वो होगी. ओके, सो मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हु अप्लाई ओडी फ्रॉम देयर लाइन और स्टाफ पोजीशंस. तो अब ये इंटरनल वो लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर सपोर्ट रोल अदा करते हैं. अब चाहे वो उनकी लाइन ड्यूटी है या उनकी स्टाफ ड्यूटी है, लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है या स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दे आर देयर टू सपोर्ट एंड इंप्लीमेंट द होल चेंज प्रोसेस इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. ओके, नाउ लेट्स सी कि जब हम कैरियर्स की बात करें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में, तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के अंदर किस किस्म के कैरियर्स हैं और लोगों को इस फील्ड में हायर कैसे किया जाता है, उस मकसद के लिए एक क्लिप मैंने आपके लिए अरेंज किया है. तवज्जो से देखिएगा एंड देन विल बी कमिंग बैक. Just let me know if the voice was audible of the video. Let me play it again for you. Hello everyone, my name is Khadijra Lejean. I currently work with Enterprise Asset Management at the MTA New York City Transit. I am a change management communications analyst. Essentially, Enterprise Asset Management is a way of looking at assets to maximize the lifespan as well as to minimize costs. So it's a new way of managing these assets. So in my role, I strategize the way that we will approach the employees to make them ready and able to undertake changes in their day-to-day work lives. I currently gather data
about change readiness, past experiences with change, information about project plans, communication patterns, so what works and what doesn't for each particular pocket of the employee population. And based on that, as an iterative process, I make communications plans around that for each project. I make risk management strategies as well as reinforcement plans to ensure that the change is sustainable over time. In addition to that, I do branding for the enterprise asset management and communications management group, just to ensure that communications are consistent and they're engaging and that we're making the most of our opportunities to interact with the employee population. When I think about the skills that would make someone successful in a role like mine, I think of 3 buckets: social skills, enterprising skills, and artistic skills. So social skills, I would say listening and asking the right questions, building rapport, to Laura's point, being empathetic, like I mentioned before, really getting to the heart of what the resistance is and what the fear is that's driving that resistance and allaying those fears. Under the enterprising bucket, I would say, of course, being within a landscape that's new to the organization, it would take the ability to manage ambiguity and bring some structure to it, bring the frameworks from TC if you can, to just make sense of the processes that exist and the ones that don't exist. Research skills, being able to be resourceful and find the best practices in other industries, other organizations, and modifying them and making them fit where you are. Being able to analyze, again to Laura's point, taking the classes that will allow you the qualitative and quantitative analysis skills, as well as presentation skills. Very much in the enterprising space that is enterprise asset management, you have to pitch new ideas to senior management, you have to pitch new ideas to other stakeholders in such a way that's very convincing. And then lastly, the artistic skills, just having an eye for design. So for example, if you're creating a flyer to build awareness, or you're creating an email campaign to build desire, being able to see what aesthetically will be most compelling to the end user, as well as having technical competencies in as many applications as possible, whether it be mobile or computer-based. So overall, social, enterprising, and artistic skills. Almost echo Tom's point, really quantify as much as possible. When I looked through resumes, my eyes immediately just went to the numbers. Okay, what are the numbers? What are the numbers? Because I have a lot of resumes in front of me, of course, for each position, and there's not a lot of time to read through all these words. So I would say quantify as much as possible. Whatever you can turn into a number, do it. Then echo the job description as much as possible. Now, at Versace, for example, their process is very manual, so the recruiter is literally reading through every resume, but at a lot of organizations, that process is automated, so you definitely want to be as close as possible a match for each job description, because they will pick you based on that. So I would definitely suggest going to TCCS and having them create a great master copy of your resume. And then for every role that you're applying to, especially the ones that you're very interested in, customize and quantify. Ask questions, and when questions are asked of you, it's okay to say, I don't know. But that must be followed by, but I will find out. And you go ahead and you find out. Get as much information as you possibly can wherever you have to look for it. Get as much exposure as you can, even if that means you're saying, oh, I have a great new idea for a different department. You build that idea, create your little PowerPoint, and try to pitch that idea to them. They would be impressed by your initiative and just your engagement in the business and your thirst for learning. So definitely make yourself seen as much as possible. Okay, we have just gone through the recruitment process, which this lady was demonstrating to us.
and also she was also pointing out that there are certain skills required जो कि बहुत ज़रूरी हैं business graduates में होना, because when they are hitting for the organization development perspective, so they should be having the presentation skill, the negotiation skill, the artistic skill. So there are so many things which she has identified. So remember कि जब कभी भी आप अपने आप को selling situation में लेकर आते हो, तो you should be there to demonstrate yourself in a better way. सेकेंडली, एक और इसने जो बड़ी अहम बात अभी डिस्कस की कि आपके पास नंबर्स होने चाहिए, कैलकुलेटेड पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए कि जिसमें यू आर देयर टू negotiate for yourself for a better position. All right. There are certain organizations which are hiring manually, but at the same time there are certain organizations जो कि technically आपसे demand करती हैं कि you should be having, supposedly मैं example आपके साथ discuss करता हूँ, that you should be having some LinkedIn account. Okay, so always go for developing your LinkedIn accounts, because even Gujranwala के अंदर there are couple of organizations जो अपनी सारी की सारी recruitment through LinkedIn करती हैं. Okay, तो जो traditional styles of operational perspective था of recruitment and selection and training and development and compensation and benefit in the market, वो सब कुछ अब challenge हो रहा है और बहुत सी नई जिद्दतें जो हैं, नई modernization के जो concepts हैं, they are coming in. तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सब फाइनल सेमेस्टर्स में हैं, तो यू शुड बी डेवलपिंग योर लिंक्डइन अकाउंट्स एंड यू शुड बी मेंटेनिंग दैट अकाउंट very progressively and very actively throughout your life. Okay, because that is the thing जिससे कि आपको jumps जो हैं in your life वो मिलते हैं. So हमारे पास competencies of an OD practitioner के हवाले से एक डिटेल आ रही है. आपकी बुक में उन्होंने जो competencies आइडेंटिफाई की हैं, अभी जैसे हमें वो पिछले क्लिप में भी वो बता रही थी लेडी कि there can be intrapersonal skills, जिसमें कि self awareness which is also required by the emotional intelligence perspective, that is most important. उसके अलावा obviously आपको social skill भी create करनी है, आपको motivational perspective में भी जाना है, आपको empathy की skill भी develop करनी है. इसी तरह interpersonal skills के अंदर ability to work with others and groups, that is what is required, because unless and until you are not somebody who can work with other people, तो आपके लिए difficult हो जाएगा organizations के अंदर survive करना. And even that is not subjected to that you are either introvert or extrovert. Okay, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस interpersonal skills के साथ, ये personality trait है, right? लेकिन आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों के साथ मिलकर इफेक्टिवली टीम ओरिएंटेशन के साथ काम वो कर सको. ये इंट्रापर्सनल स्किल्स के अंदर मैं चीज और ऐड करना चाहूंगा कि टू डेवलप द सेल्फ अवेयरनेस, एक बड़ी पॉपुलर एक्सरसाइज जो कि इवन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर भी रिकमेंड की जाती है, एंड दैट इज दैट यू शुड बी एबल टू डेवलप योर ओन लाइफ्स mission, vision and value statements, and you should be able to do your own life's SWOT analysis. क्योंकि जब तक आप अपना जिंदगी का SWOT एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी के मिशन, विजन एंड वैल्यू स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं, तो हाउ डू यू प्लान टू डू इट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? ओके, तो इससे भी आपकी सेल्फ अवेयरनेस जो है वो काफी बूस्ट वो हो जाती है. The third competency which your book is talking about general consultation skills, जिसमें कि ability to manage consulting process. उसके लिए obviously जो formalities हैं of presenting oneself as a consultant, वो सब आपको आनी चाहिए. Likewise, organization development theory के बारे में आपको complete know-how होना चाहिए कि knowledge of change process क्या है, उसके steps क्या हैं, procedures क्या हैं, formalities क्या हैं, prerequisites क्या हैं, because उन तमाम prerequisites को जाने बगैर it would be again difficult for you कि आप अपनी competencies को demonstrate proper तरीके से वो कर सको. That is the list which is technically presented in your book. लेकिन आपको मैं एक और detailed list की तरफ लेकर जा रहा हूँ. Let me just show you that. Umar Aziz has put a question कि she talked about technical skills. So obviously technical skills में आपको जो operational perspectives हैं उनका पता होना चाहिए. Technical skill does not necessarily mean कि आपको मशीन चलानी आनी चाहिए. Technical skill में आपकी computer and IT skills भी शामिल हैं. Technical skills में आपके पास suppose project management के हवाले से orientation हो. Technical skills में जो आपके specialized softwares होते हैं, मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि एचआर के डिसिप्लिन में हमें क्या चाहिए, जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपको उनके बारे में बड़ा इन डेप्थ नॉलेज वो होना चाहिए. ओके, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स के साथ खेलना नहीं जानते हो, सो आपके लिए डिफिकल्ट होगा अपने आप को, अपनी सीवी को बकिया तमाम की सीवी से डिफरेंशिएट करना.
ओके और फिर जो भी काम आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, चाहे वो कंपनसेशन एंड बेनिफिट है, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, वो ओडी कंसल्टेंसी है, आपके पास उससे रिलेटेड जितना भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो सारा का सारा भी वो होना चाहिए। अब उन्हीं टेक्निकल स्किल्स की कहानी में हमारे पास ये एक 20th एडिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट कॉम्पिटेंसी एफर्ट का एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उन्होंने ओडी प्रैक्टिशनर्स के लिए एक पूरी डिटेल इस्टेब्लिश की हुई है कि किस किस हवाले से उनको अपनी कॉम्पिटेंसीज वो बढ़ानी चाहिए। देयर इज अ क्वेश्चन इन द चैट रूम दैट यू मेंशन्ड इन अकाउंट LinkedIn account that people and other people in their account so are the socializing should be only to limited to the people we know, or it is the case otherwise. It is the case otherwise, beta. It is not just that you add everyone, but you should have a bigger network. Adding everyone and having a bigger network, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। LinkedIn account के ऊपर don't add everyone, but you should have a larger exposure to more people so that आपको जो क्रॉस रेफरेंसेस हैं, डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब्स हैं, वो सारा कुछ आप अवेल कर सको। एंड रिमेंबर कि लोग बड़ा गलत यूज करते हैं लिंक्डइन को भी। लिंक्डइन इज नॉट लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल्स नेटवर्क। उसमें उसको चैट रूम मत बनाएं, उसके ऊपर चैटिंग मत पोस्ट करें, उसके ऊपर जो है वो इधर उधर की कोटेशंस हर वक्त मत पोस्ट करें। लिंक्डइन अकाउंट इज फॉर योर प्रोफेशनल ओरिएंटेशन। उसमें सिर्फ वो चीज पोस्ट करें जो कि आपको प्रोफेशनली स्ट्रेंथन वो कर रही हो। बाकी आपने जितनी चैट करनी है वो जाकर आप फेसबुक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, स्नैपचैट पे करें। ठीक है। सो इस चीज को बड़ा टेक्निकली हमें देखना चाहिए कि कौन सा मीडियम, जो सोशल मीडिया भी हम बात करते हैं, वो कौन सा सोशल मीडिया किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है, उसको उसी पर्पस के लिए यूज वो करना चाहिए और उसी पर्पस के हवाले से उसमें लोगों को भी एडअप वो करना चाहिए। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है कि वी हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट इट। Okay, coming back to the list of the competencies required by different OD practitioners, यहाँ पर हमारे पास is a long list, तकरीबन 140 अराउंड मोर और लेस हमारे पास competencies की लिस्ट आती है जो कि एक OD practitioner को required है। Now for example, मार्केटिंग से रिलेटेड जब हम बात करें तो इट इज सेड कि एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ओडी प्रैक्टिशनर कैन क्या कुछ कर सकता है, वो बी अवेयर ऑफ सिस्टम्स वांटिंग टू चेंज। ओके, अभी जैसे हमने एक सीवी को भी गो थ्रू किया था कि हाउ पीपल आर देयर टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कैपेबिलिटी। तो आपको एज एन ओडी प्रैक्टिशनर पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर नजर रखनी है कि वो कौन से इदारे हैं जो चेंज लाने के लिए तैयार हैं, वो कौन से इदारे हैं जहां पर प्रोस्पेक्टिव चेंज मतवक्को है, सो दैट आप जो कंसल्टेंट के तौर पर क्लाइंट के साथ जब इंटरेक्ट करो तो यू ऑलरेडी नो कि किस किस्म के चेंजेस जो है इस इंडस्ट्री के अंदर वो आने चाहिए। सो दैट इज द कॉम्पिटेंसी विच इज रिक्वायर्ड। इसी तरह सेकंड वन देखिए, बी नोन टू दोज नीडिंग यू। अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ट्रस्टवर्दीनेस उसको एनहांस करें, और वो तभी एनहांस होगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कांटेक्ट होगा, जब आप इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव में मूव करेंगे, जब आप डिफरेंट सोशल एंड जो प्रोफेशनल फोरम्स हैं वहां पर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग जहां से आपका स्टार्टअप जो है वो शुरू होता है प्रोफेशनली। सो देयरफॉर सोसाइटीज आपकी डिफरेंट होती हैं, जैसे पाकिस्तान में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी जो है वो अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन करें। वहां पर उनके हर फोर्टनाइट पर, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली उनके डिफरेंट सेशंस होते हैं, वहां पर जाइए और जाकर वहां पर सोशलाइज कीजिए प्रोफेशनल्स के साथ, और वहां पर जो इंडस्ट्रियल मेंबर्स आए हुए हैं उनके साथ, वहां से आपके कॉन्टेक्ट्स, वहां से आपकी मार्केटिंग वो शुरू होती है। ठीक है। सो बी नोन टू दोज नीडिंग यू, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री आपको जानेगी नहीं, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, आपकी ट्रस्टवर्दीनेस नहीं होगी, तो उस वक्त तक ऑब्वियसली दे वुड नॉट बी कॉन्टैक्टिंग यू फॉर द नीड। The third competency in the marketing context which is required is match skills with professional client profile. Okay. In the very start, obviously,
you might be feeling some difficulty, lekin to remain, you keep yourself persistent, you keep on, pulling and pushing yourself with the, wall. So eventually you'll find the way into uh, the organizations, into the societies, into the professional networks. ठीक है? Again उसके लिए कुछ उनके प्री रिक्विजिट्स भी हैं, तो unless and until you are not meeting those prerequisites, तो वो difficult हो जाएगा कि आप उन organizations को as such वो join करो. So prereqs में one thing is obviously clear कि you should be having some qualification to join that particular forum. लेकिन मेंबरशिप डिफिकल्ट नहीं होती. आई टेल यू, मेंबरशिप डिफिकल्ट नहीं होती. यू पे 1 visit, you pay 2 visits, so you get through the chance to get the membership. Okay, coming back to the discussion from the competencies, वो कह रहा है कि मैच स्किल्स विद पोटेंशियल क्लाइंट प्रोफाइल, आपको उसके साथ मैचअप करना है कि क्लाइंट जो है वो क्या एक्चुअली रिक्वायर कर रहा है. उसमें लैंग्वेज के यूजेज से लेकर अपने आप को टेक्निकली प्रूव करना कि जो क्लाइंट की जरूरत है उसके लिए यू आर द राइट पर्सन, ये बहुत जरूरी है. और उसके लिए आपके पास मल्टीपल स्किल्स जो हैं, दैट इज ऑब्वियसली द वे टू प्रोसीड. The fourth aspect, the fourth competency related to marketing is convey qualifications in a credible manner. Okay, आपकी CV, आपका प्रोफाइल इस तरीके का बना होना चाहिए कि the client on the go in the first look वो पिक कर ले कि okay, this is the person I'm looking for. Okay, जैसा भी आपको मैंने वीडियो के अंदर भी दिखाया. The next is convey qualification in a credible manner. Quickly grasp the nature of the system. ओके, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में आप मूव कर रहे हो, वो टेक्सटाइल का सेटअप है, वो ऑयल एंड ऑयल रिफाइनरी है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स हैं, वो कोई स्कूल सेटअप है, वो कोई ऑटोमोबाइल इन्वायरमेंट है. आपको वहां पर उस सिस्टम की जो नेचर है, सिस्टम का जो कल्चर है, सिस्टम के जो तकाजे हैं, वहां पे जो ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट में चीजें चलती हैं, उनका बड़ा क्लियरली पता वो होना चाहिए. और आप में ये कैपेबिलिटी हो कि आप सिस्टम को इजीली पिक कर सको in a proficient manner. The sixth competency required is determine appropriate decision makers. ठीक है? So who are the people in the organization holding the decision making power? आप उनके साथ in contact आ जाएं. ठीक है? Because अक्सर औकात जो real decision makers हैं, they are not as such in front. So you should be very much careful कि आपको कहां से और किस तरीके से वहां पर move करना है. There is a question in the chat room that won't nature it be like autocratic or participative etc. Obviously आपका एक by nature autocratic और participative हो सकता है, लेकिन आप में at the same time adaptability और flexibility होना जरूरी है, ताकि जहां पर जिस सिस्टम के मुताबिक जो चीज आपसे रिक्वायर की जा रही है आप उसको अडॉप्ट कर सकें. बिकॉज जब हम ये बात करें कि हमारे में एक पर्सन हु इज ऑटोक्रेटिक और हु इज पार्टिसिपेटिव और अपना स्टाइल चेंज नहीं कर सकता है, तो दैट कॉन्सेप्ट हैज बिकम एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स. इन द मॉडर्न कंटेम्प्रेरी स्टाइल वी से कि आपका स्टाइल विद द ट्रेनिंग, विद द डेवलपमेंट, विद द प्रैक्टिस, विद द इंटेंशन वो बदल सकता है. तो आपको फ्लेक्सिबल, एडेप्टिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव वो होना पड़ेगा. ठीक है, उसके बगैर चारा नहीं है. दैट इज बेसिकली द आंसर टू योर क्यूरी. सो आपको इसी के साथ साथ डिटरमिन एप्रोप्रिएट प्रोसेसेस कि आपको किस तरह से कंसल्टेंसी को लेकर चलना है. और यहां पर एक और चीज फिर से याद रखिएगा, मैंने शुरू के सेशंस में आपको बताई थी कि व्हेन टू गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड एंड व्हेन नॉट टू गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड, ये डिसीजन मेकिंग आपके लिए बहुत जरूरी है. बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आपको जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है आप उसको विन करते चले जाओ. समटाइम्स अगर आपको ये लगे कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो एग्जैक्ट कंपिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं, सिस्टम रिलेटेड या टेक्निकल एस्पेक्ट से रिलेटेड, वो आपके पास नहीं है, तो डोंट पोक योर नोज इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स आपको पिकअप करने चाहिए इन द स्टार्ट पर्टिकुलरली कि जिनके हवाले से आपको लगे कि ओके दैट इज द सब्जेक्ट एरिया, दैट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट जिसके ऊपर आप कंफर्टेबली अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो. ओके, अब एनरोलिंग उन्होंने सेकंड कैटेगरी आइडेंटिफाई की कि जिसमें हम ये चीज देख रहे हैं कि आपको किन कंपिटेंसीज की जरूरत है. इन द एनरोलिंग कॉन्टेक्स्ट इट सेज कि एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर कैन नंबर 1 बिल्ड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप्स. और ट्रस्ट रिलेशनशिप तभी कायम होगा व्हेन यू आर देयर विद योर क्रेडिबिलिटी
और जब आप एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर अपने आप को एस्टैब्लिश वो कर पाओगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, देयर इज नो डाउट। ट्रस्ट इज समथिंग जो कि ऑन फर्स्ट साइट शायद डेवलप नहीं होता है, ट्रस्ट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश। और उसके लिए ऑब्वियसली आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर जहां पर भी आप ऑपरेट कर रहे हो अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्डअप करना पड़ेगा। और एक और बात भी याद रखिएगा कि ट्रस्ट वुड टेक अ लॉन्गर टाइम टू बिल्ड एंड इट वुड टेक अ ब्लिंक ऑफ एन आई टू वैनिश। ओके, तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा इकदाम ना करें, कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे आपका ट्रस्ट विद द क्लाइंट्स, ट्रस्ट विद द इंडस्ट्री वो शेक हो जाए। और उसमें भी याद रखिएगा कि समटाइम्स ये भी होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट टेकअप किया, उस प्रोजेक्ट के हवाले से आपकी कंपिटेंसी नहीं थी, आप कुछ पैसे के लालच में सिर्फ वहां पे चले गए और वो प्रोजेक्ट वाज अ कोलैप्स, आप बुरी तरह वहां पर फेल हो गए, तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट जस्ट बी द लॉस ऑफ द प्रोजेक्ट, यू वुड लूज द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट एज वेल। तो ये बड़ा केयरफुल खेल है जिसके अंदर आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। द नाइन्थ कंपिटेंसी रिक्वायर्ड इज प्रेजेंट द थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ चेंज। क्योंकि ऑब्वियसली आप जब क्लाइंट के साथ स्टेप 1 के ऊपर जब आप अपना प्रपोजल पेश करते हो, तो प्रपोजल के पेश करने में आप इंप्लीमेंटेशन शो नहीं कर सकते। वहां पर जो चीज आपने शो करनी होती है इन द प्रपोजल स्टेज, वो आपकी थ्योरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ द चेंज होती है। क्योंकि आपने थ्योरी के अंदर कागजों के ऊपर दिखाना होता है कि आप जिस चेंज की बात कर रहे हो उसके प्री रैक्स क्या होंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। तो दैट इज ऑल द डॉक्यूमेंटेड पार्ट। फिजिकल चेंज उसके बाद शुरू होगा। Okay, so you should be having the proper competency of demonstrating theoretical foundations of change, तब आप contracting and enrolling के अंदर वो आ सकते हो। इसी तरह 10th स्टेप के ऊपर देखिए, डील इफेक्टिवली विद रेजिस्टेंस। और आपको इसके लिए हर वक्त तैयार रहना है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेशुमार तरह की लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, पॉलिटिकल लॉबिंग, ये सब चीजें प्रिवेल करती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जो होती हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से लेकर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हर जगह पर अवेलेबल है। फैमिली रन एंटरप्राइजेस के अंदर बेशुमार पॉलिटिक्स अवेलेबल होती है। तो अब अगर आप एक फैमिली रन एंटरप्राइज के साथ डील कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल कि वहां पे किस किस्म की रेजिस्टेंस आ सकती है, वहां का कल्चर कैसा है, वहां पे लोगों के मिजाज कैसे हैं, वहां पर वो किस एज ग्रुप से इवन ताल्लुक रखते हैं। बिकॉज बेबी बूमर्स की जो रेजिस्टेंस होगी वो बेबी बस्टर्स की रेजिस्टेंस से डिफरेंट होगी, और बेबी बस्टर्स की जो रेजिस्टेंस होगी वो जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई की रेजिस्टेंस से डिफरेंट होगी। तो आप बीइंग एन ऑडी प्रैक्टिशनर आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि किस जनरेशन के लोगों के साथ आपका वास्ता है, और उस जनरेशन के लोगों के ख्यालात, उनके जो तकाजे हैं थॉट प्रोसेसेस के, वो क्या हैं, और हाउ यू आर एबल टू डील विद देम। लाइकवाइज आपके पास 11th कंपिटेंसी जो रिक्वायर्ड है, दैट इज हेल्प द क्लाइंट ट्रस्ट द प्रोसेस। और उसके लिए ऑब्वियसली आपको कन्विंसिंग कैपेबिलिटीज के साथ आना पड़ेगा, नेगोशिएशन के साथ आना पड़ेगा टू विन द प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। नंबर 12th competency जो आपसे रिक्वायर्ड एज एन ओडी प्रैक्टिशनर, दैट इज हेल्प द क्लाइंट मैनेज इमोशनली चार्ज्ड फीलिंग्स। राइट, बिकॉज क्लाइंट का पैसा लगा होता है, क्लाइंट बड़ा सेंसिटिव होता है अपने बिजनेस के बारे में, और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल के रिस्क वो खुद ले रहा हो, वो आपके हाथों से रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आप उसके उस इमोशनल एसोसिएशन एंड एफिलिएशन विद द बिजनेस को आप कैसे चैलेंज करोगे, उसके लिए ऑब्वियसली आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का होना वो जरूरी है। यू शुड बी हैविंग स्टार्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ अवेयरनेस टू एम्पैथी एंड सोशल स्किल एंड मोटिवेशन। ये तमाम तरह पर्सपेक्टिव्स हैं जिनकी आपको जरूरत होगी इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द क्लाइंट। ओके, इसी तरह 13th आप इसका पॉइंट देखिए जिसमें वो बात कर रहा है कि कोलैबोरेटिवली डिजाइन द चेंज प्रोसेस। ओके, तो क्लाइंट के साथ मिलकर, कहीं पर भी क्लाइंट को ये फीलिंग ना आए कि आप शायद सिस्टम को टेक ओवर करने के चक्कर में हो। आप हरगिज भी टेक ओवर करने के चक्कर में नहीं हो, आप वहां पर एज ए कंसल्टेंट हो एंड योर ओनली ड्यूटी इज टू प्रोवाइड द कंसल्टेशन। ओके, हमारा जूम मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिए।